Good morning, students. Students, today we start our next chapter of class 7 science, that is lesson 11, transportation and excretion in organism. So firstly start before starting this chapter, we have to know about what is transportation and what is excretion. Okay. So what is transportation? Transportation means that the transport of material from one part to another part of the body. Okay, like in your SST you have read about different transport system like land transport, water transport, air transport. In land also there are buses, cars, air transport, aeroplane, okay, and water transport, ship, cruise, boat. So these are used so that we move from one place to another place. But in living organism, what does transport means? Ki there is transport of the materials that are useful for the body and the transport of the material that are harmful for the body and that have to be excrete out from the body. तो ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होना है बेटा? फूड का होना है, ठीक है, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का होना है, गैसेस का होना है, ठीक है। फिर जब हमारी बॉडी में मटेरियल्स का, यूजफुल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमारी बॉडी में फिर क्या बनेगा? वेस्ट भी बनेगा। अब उस वेस्ट का डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होना ताकि क्या है वो ऑर्गन्स उन्हें हमारी बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दे, तो दैट इज द एक्सक्रीशन। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सॉरी। तो लेट्स बिगिन। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन लिविंग थिंग्स डू यू थिंक हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट, ठीक है, इनमें से कौन से ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में से वेस्ट को बाहर रिमूव कर सकते हैं? तो दैट इज हमारी बॉडी की बात करें तो दैट इज किडनी, दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड द स्किन दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। किडनी एंड स्किन बोथ रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनी रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन बना के हमारी बॉडी से वेस्ट को रिलीज कर रही है। एंड स्किन रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना जो बना के उसको क्या कर रही है हमारी बॉडी से बाहर रिमूव आउट करें। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। We have studied that food is the source of energy in all living organism, and every cell of an organism get energy by breakdown of glucose in the presence of and absence of oxygen, and producing carbon dioxide and some other waste. What that mean? Ki each and every living organism need food. For what? For the energy. Because each cell, each tissue, each organ of our body need energy to perform their activities, and that energy we get from our food. And in food what is present? That is the glucose, that is the glucose that break down to give us carbon dioxide, water, and energy. Energy is used by our body, water is used by the body, excess water remove out from the urine, and carbon dioxide also remove out in the form from the lungs. So glucose provide the energy to our body. Okay, clear? So and the cells use this energy to carry out the vital activities of the life. So therefore food must be available to every cell of an organism, and organism need to transport food to all the cells in various part of the body. अब ये फूड जो हमने ईट अप किया है, अब उस फूड का क्या हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचना बॉडी में ज़रूरी है, तभी उनको एनर्जी मिलेगी और वो वर्क कर पाएंगे। तो वेस्ट आर प्रोड्यूस बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसी तरह हमारा हर सेल, हर टिश्यू क्या है, वेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस वेस्ट टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, ठीक है। तो इस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है, वो अलग ऑर्गन्स तक पहुंचेगा जिसके थ्रू वो बॉडी से हमारे क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। सो वाटर इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बोथ फूड एंड द वेस्ट। तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है दैट इज़ द वाटर, एंड दैट वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड इन आर बॉडी, जो फूड का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और वेस्ट का भी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर survival, okay, and they take these all things from the surrounding. So now the transporting simple plants animals. What are simple plants animals? That are made up of a single cell, unicellular organism, and multicellular. Unicellular means made up of one cell, ठीक है। मल्टी सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी 2, 3, 4, 5, that are the multicellular organism. And unicellular organisms we are not able to see them with our naked eyes, उन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, we use microscope to see them. And multicellular organism are we are capable to see them, like human being, plants, animals, insects, birds, these all are multicellular organism. So the transport system inside in animals
move substances to where they are needed in the body. Even the smallest animal must have the means of transport system around its body. ये छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म भी एनिमल भी है तो उसकी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है. ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल्स must reach to all the cells while the waste produced must be removed from the cell and expelled into the external environment. Means हर सेल तक फूड पहुंचेगा, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब पहुंचेंगे, और हर सेल से जो वेस्ट प्रोड्यूसर है वो भी क्या है बाहर के इन्वायरमेंट में रिमूव आउट हो जाएगा. ओके क्लियर. देन इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल के बने, लाइक अमीबा. ओके अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसका एक न्यूक्लियस होता है जो उसकी सारी वर्किंग क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो वाटर में पाया जाता है, तो वाटर के थ्रू जो फूड और ऑक्सीजन है वो सीधा डायरेक्ट उसकी बॉडी में एंटर करेगी. अंदर जो वेस्ट होगा उस बॉडी के थ्रू सीधा क्या बाहर वाटर के अंदर क्या कर जाएगी, रिमूव आउट कर जाएंगी. तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. सेल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सराउंडिंग. उसका ये एक सिंगल सेल ही है, ठीक है, जो पूरे इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है. फूड वाटर ऑक्सीजन जो है वो इस सेल के अंदर आएगा और वेस्ट वहां से क्या होगा, बाहर की ओर रिमूव आउट हो जाएगा. ओके क्लियर. एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, ठीक है, ये भी वह बहुत ही सिंपल इनकी बॉडी होती है, कुछ एक सेल के बने होते हैं, ठीक है. और हर सेल क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट के साथ क्या कांटेक्ट में होता है, जैसे वाटर में पाए जाते हैं, तो वहीं से वाटर के थ्रू ही क्या मटेरियल उनकी बॉडी में पहुंचेगा. वही वाटर फूड और ऑक्सीजन को लेके आएगा और उनकी बॉडी में एंटर कर जाएगा. वेस्ट के उनकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या है वाटर के अंदर रिमूव आउट हो जाएगा. तो these animals do not need or possess any circulatory system or circulatory fluid like the blood. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है जो मटेरियल्स को सर्कुलेशन कर रहा है, तो इनके बॉडी में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है ऐसा ब्लड की तरह जो क्या करेगा मटेरियल्स को लेके आने और जाने का काम करेगा. कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जो वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करेगा. इससे सिंपल प्लांट्स जैसे फंजाई जिसको उल्ली कहते हैं, अचार को उल्ली लग जाती है, मोसिस होते हैं, एल्गी जो हरियाई होती है, लाइकन्स है, ये भी इनके कोई बॉडी सिस्टम डेवलप नहीं होता है. इनका सीधा बॉडी से क्या होगा, जो वेस्ट है वो बाहर की ओर निकल जाएगा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से यूजफुल मटेरियल की बॉडी में एंटर कर जाएंगे. बट in the complex organism like large plants and animals, different cells are organized to form tissue and tissue organized to form the organs. सो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है. और ऑल द सेल्स नॉट बीइंग इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, और हमारे हर सेल क्या है सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए क्या है डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, जिनको क्या अलग अलग काम क्या है डिवीजन कर दी गई कि कोई अपना ये काम करेगा कोई दूसरा अपना वो काम करेगा, यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन इससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स की प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किसका होना है, रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स का होना है लीफ तक, और लीफ ने जो फूड बनाया उसका क्या ट्रांसपोर्ट होना है अलग पार्ट्स तक जाने के लिए. सो रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से सॉइल में से क्या होगा, वो वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगे डिजोल्व फॉर्म में लेंगे वाटर की हेल्प से, विच आर नीड बाय एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट्स का मतलब वो लीव्स तक जाना है, ठीक है. फिर एज सच दीज सब्सटेंसेस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट अप टू द स्टेम लीव्स एंड फ्लावर. और उस वाटर सिस्टम का मिनरल्स का क्या है हर एक लीफ तक फ्रूट तक फ्लावर तक पहुंचना क्या है ज़रूरी है. एंड लीव्स क्या करेंगे फिर प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएंगे, ठीक है. वाटर रिलीज करें कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू क्या बाहर रिमूव आउट हो जाएगी, वाटर भी ट्रांसपिरेट हो जाएगा एक्सेस वाटर, और जो फूड बनाएगा वो प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक क्या पहुंचेगा और कुछ पार्ट्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. तो ये किस तरह से होता है, ठीक है. देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज of plants, that is xylem and phloem. They comprise the plant transport system that is called vascular system. ये दोनों मिलकर xylem और phloem मिलकर क्या है प्लांट का क्या बना रहे हैं ट्रांसपोर्ट जिस सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है. अब है प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. आपको पता है प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब करेगा, और रूट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स, ये कोई रूट्स हैं, ठीक है. इनके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है. The root hairs increase the surface area of roots for absorption of water and minerals nutrient dissolved in the water.
So root hair is in contact with water present between the soil particles. इस रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, और सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या इनके अंदर वाटर पहुंच जाएगा। ठीक है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब वो वहां कहाँ जाएगा, रूट से कहाँ जाएंगे, रूट से वो जाएंगे लीव्स तक। ठीक है, रूट से वो कहाँ जाएंगे, लीव्स तक जाएंगे। ठीक है, ये एक प्लांट है। ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो स्टेम में गए, स्टेम से ब्रांचेस में गए, ब्रांचेस से कहाँ पहुंच जाएंगे, लीव्स में पहुंचेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन वाटर क्या रूट से कहाँ जा रहा है, लीव्स में जा रहा है, तो कोई तो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जो क्या है, रूट से वाटर को लीव्स तक पहुंचा रहा है, एंड दैट आर द जाइलम। वो कौन है, जाइलम है। जाइलम एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट्स है इसके, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। कौन से पार्ट्स हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जो क्या है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये सेम क्या है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स जो वाटर लेके हमारे घरों में आते हैं, उसी तरह मेन पाइप आ रही है सप्लाई की तरफ से। ठीक है, वो हमारे घर में एंटर की, और उसने अलग क्या है, हमारे किचन में अलग पाइप गई है, बाथरूम्स में अलग गई है, टॉयलेट्स में अलग गई है, बरामदा में अलग गई है। तो ठीक है, तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ रहा है। ठीक है, वो आगे ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, और उसने आगे क्या है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो दैट इज द सिस्टम इन द प्लांट्स की, उनमें क्या है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू वाटर को लेके आने वाला कौन है, जाइलम। लेकिन आगे उसकी पाइप्स बनी हुई है, वो कौन सी है, ट्रैकिड्स एंड द वेसल्स। ठीक है, जाइलम मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, उसका पार्ट क्या है, ट्रैकिड्स और वेसल्स है, जो वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा। ट्रांसपिरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स। जब लीव में से वाटर वाटर वेपर बन के बाहर रिमूव होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है। दे गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब जो एक्स्ट्रा वाटर आ गया, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर रिमूव होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक ये एक्टिविटी बताई, इन्होंने कहा एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए। पॉटेड प्लांट नहीं तो अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई भी प्लांट लगा हुआ है, तो आपके उसके कुछ पार्ट के ऊपर आप एक वाइट पॉली बैग को क्या कर दीजिए, रैप कर दीजिए, और आफ्टर फ्यू आवर्स आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे, आपको वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देंगी। वहाँ पे क्या दिखाई देंगी, उसके अंदर वाटर ड्रॉप्स। वो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई, दैट आर द वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, की लीव्स ट्रांसपिरेशन कर रही है, जिसके थ्रू वो वाटर वेपर को रिमूव करिए। वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स बन के उस पॉली बैग के अंदर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। दैट शो कि प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन शो करते हैं। ठीक है, कहते हैं एज यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लास, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। So, the loss of water is caused by evaporation through the stomata present on the surface of leaves। आपको तो लीव्स में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और ट्रांसपिरेशन भी होता है। ठीक है, तो कहते हैं ड्यू टू दिस देयर इज अ टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ वाटर, की जब लीव्स क्या कर रही है, ट्रांसपिरेशन कर रही है, वाटर क्या हो गया, लीव्स के थ्रू बाहर रिमूव आउट हो रहा है, तो टेम्परेरी क्या है, वाटर की शॉर्टेज कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो जाइलम वेसल है, ठीक है, वो क्या करेगा, वाटर को नीचे से रूट्स के थ्रू क्या ऊपर की ओर पुल करना स्टार्ट करेगा। ये कहलाएगा सक्शन पुल, दैट इज कॉल्ड सक्शन पुल। तो सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा है। देयर इन टर्न टेक वाटर अप from the xylem vessels of branches, stems and roots. Thus, process of transpiration generate a suction pull। ठीक है, दैट इज सेम यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक द वाटर फ्रॉम ए स्ट्रो। जब आप क्या है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कुछ भी है, तो उसमें स्ट्रो का यूज करते हैं। माउथ के थ्रू स्ट्रोक में से क्या आप सक करते हैं, तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है या जूस है, वो ऊपर स्ट्रो में आता है। सेम द वे इज इन प्लांट्स, कि जब प्लांट में से ट्रांसपिरेशन होगी, वाटर जाएगा बाहर, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और कोई भी चीज़ कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो वाटर नीचे से ऊपर की ओर खींचता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, दैट इज द सक्शन फोर्स, जिसके थ्रू हो रहा है सक्शन फोर्स। दिस पुल कोज वाटर टू रीच ग्रेटर हाइट्स इन टॉल trees beside helping plants to get rid of extra water. Transpiration help in maintaining the optimum body temperature of the plant। what that mean, ट्रांसपिरेशन एक तो ये काम कर रहा है कि जाइलम के थ्रू वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दूसरा क्या, ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर भी कूल रहता है। इसलिए कहते हैं जब हम समर में क्या होता है, अगर ट्रीज की शेड में खड़े होते हैं तो हमें वहां पर कूलनेस फील होती है। वाई, बिकॉज द प्लांट्स लीव्स आर डूइंग ट्रांसपिरेशन, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्लोएम। अब भाई लीफ ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बना लिया, फूड बना लिया।
उस फूड ने क्या होना है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टोर होना है, ठीक है, हर पार्ट तक जाना है, तो दैट इज बाय द फ्लोएम। तो लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड विच इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स। रूट्स को भी चाहिए, लीव्स को खुद को भी चाहिए, फ्लावर्स को भी चाहिए, फ्रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी, ब्रांचेस, हर पार्ट को, सीड को भी, बड को भी, हर पार्ट को फूड चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसको लेके जाने वाला कौन है, फ्लोएम। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लीफ ने फूड बनाया वो अलग पार्ट्स तक जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। फूड में भी जो बना है शुगर की फॉर्म यानी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एमिनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकता है, फैट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। एंड ट्रांसलोकेशन कौन करेगा, फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। और फ्लोएम के कौन से दो पार्ट्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जैसे जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिड्स थे, फ्लोएम के अंदर कौन है, सीव ट्यूब्स है, ठीक है, और कौन है, कंपेनियन सेल्स है, जो फूड की क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउन में रूट की तरफ भी फूड जाएगा और टिप तक भी क्या जाएगा, फूड जाएगा। और जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो स्टोरेज ऑर्गन्स है, रूट है, स्टेम है, उनके अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, बर्ड्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो एज ए फूड हम प्लांट उसका यूज़ करेगा। या हम लोग क्या है, जो पोटैटो ईट अप कर रहे हैं, जिंजर खाते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, किसी प्लांट के सीड्स खा रहे हैं, ग्रेन्स को खा रहे हैं, वो सब क्या है, वो फूड है जो कि उनके पार्ट्स के अंदर स्टोर है और उसे हम ईट अप कर रहे हैं। तो दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो मेनली ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम किसका कर रहा है, वाटर का कर रहा है थ्रू वेसल्स एंड ट्रैकिट। सेकेंड वन इज द फ्लोएम, ठीक है, जो किसका कर रहा है, फूड का कर रहा है बाय सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन cells. So here we have finished about the transport in plants. In next video we start the transport in human beings. Thank you.